Now, in the previous lecture, that was in the previous week, we have seen the last topic in Laplace transform, that is application of Laplace transform. We have seen one application of Laplace transform, that is to evaluate real integrals. Okay. Now with that we complete the first module, the first topic, that is Laplace transform. Today we'll start with the next topic, and that is inverse Laplace transform. Okay, so let's get started with this. Now in today's lecture, as I have already told you, we are going to see inverse Laplace transform. Okay, so first of all, let's quickly recall what we did in the previous lecture. Now in the previous lecture, we have seen how to evaluate this integral 0 to infinity e raised to minus at into some function of t dt using Laplace transform. Okay, so what was the procedure we saw here? We saw that first of all, when we look at the integral 0 to infinity, what do we remember? We remember the definition of Laplace transform, right? And then we use definition to evaluate this integral. So we compare this integral with the integral present in the definition, which is integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. This integral is Laplace transform of f of t. So when we compare these two, we see integral ka limits are same. Exponential function, when we compare with this exponential function, we get s equal to a over here, and here we have this f of t. So this gives us कि ये जो integral है, this integral is actually Laplace transform of f of t at s equal to a. Means if you want to evaluate this integral, that is integral 0 to infinity e raised to minus at f of t dt, step 1, you have to find out the Laplace transform of this function f of t. What is this function f of t? इंटीग्रल के अंदर एक्सपोनेंशियल के अलावा जो भी फंक्शन प्रेजेंट है उसका लप्लास ट्रांसफॉर्म स्टेप 1 में फाइंड आउट करना है. ओके, देन स्टेप 2 में in this answer we get this answer, no, Laplace transform of f of t. In this answer we put s equals to a. Okay, and this is what we have seen. We have seen problems based on this, practice किया है problems. Okay, so I hope things are clear. All right, तो ये था अपना last topic of Laplace transform. Now today we will start with inverse Laplace transform. Okay, नाउ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने से पहले इसमें हम दो चीजें देखेंगे. पहले एक है वाई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. भाई अब तक तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म चल रहा था, अभी सडनली ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ गई. ओके, तो ये वी विल सी वाई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. then we will see what is this inverse Laplace transform. ये inverse Laplace transform actually क्या है, इसका notation, इसका the so called definition, ये देखेंगे. And then the third thing that we will be seeing in this entire topic, throughout the topic, जो तीसरी चीज देखेंगे वो है how to find inverse Laplace transform of given function. Okay, तो ये तीन चीजें देखनी है. आज के लेक्चर में दो चीजें देखेंगे कि first let us see why inverse Laplace transform. Why do we need inverse Laplace transform? Okay, so for this here I would like to tell you this one small little story. Okay, you can see this picture in front of you. This picture is shows you two places over here. ये एक ब्रिज दिख रहा है, करेक्ट, और ब्रिज के लेफ्ट में एक जगह है. ओके, दिस प्लेस इज आवर टाइम डोमेन. ओके, और ब्रिज के राइट साइड में जो एक वर्ल्ड है, एक जगह है, दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज क्या करता है, ये टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन को कनेक्ट कर रहा है. ओके, सो दिस इज द सिनेरियो वी आर हैविंग राइट नाउ. ये एक बंदा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर. कैन यू सी दिस? एम आई ऑडिबल? आज ऑडिबिलिटी का कुछ इश्यू है? सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, नो इश्यूज ना. ओके, दैट्स ग्रेट. ओके, तो ये एक बंदा दिखाई दे रहा है यहाँ पर टाइम डोमेन में. इस बंदे के हाथ में, दिस बंदा इज स्ट्रगलिंग विद समथिंग.
इसके हाथ में कुछ तो है जो बहुत इसको तकलीफ दे रहा है. यू वांट टू सी उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. ओके, ही इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा भारी पड़ रहा है. ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से डोमेन में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है? टाइम डोमेन में. ओके, सो ही इज फाइंडिंग इट लिटिल डिफिकल्ट सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तभी इसको स्ट्राइक होता है कि ओके, देयर इज अनदर ऑप्शन दैट आई कैन डू. व्हाट इज दैट? ही कैन मूव ऑन टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन. ये डिफरेंशियल इक्वेशन को वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर लेकर जा सकता है, एंड ही कैन ट्राई सॉल्विंग इट ओवर देयर. तो ये बंदा क्या करता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने की कोशिश करता है. But if he has to go to frequency domain, he has to use this bridge. Okay, so from time domain to frequency domain, ये जो bridge है, the bridge which he uses is Laplace transform. Okay, this bridge is a tool to go from time domain to frequency domain. So the tool which he uses to go from time domain to frequency domain is our Laplace transform. Okay, तो चलो इसने Laplace transform use किया, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में पहुंचा, और यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन भारी था, देखो यहाँ पर कितना हल्का हो गया. ही इज सो हैप्पी विद दैट. ओके, सो द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स वेरी इजी बिकॉज इट बिकम्स एन algebraic इक्वेशन, राइट? तो ये इट बिकम्स वेरी इजी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको सॉल्व करता है, और इसके हाथ में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है. Okay, so this person who is having a differential equation in the time domain uses Laplace transform, goes to the frequency domain, and now he has also solved it and found out the solution. Okay, तो इस will this person be happy here? इसको तो solution मिल गया, तो यहाँ पर खुश हो जाएगा, वो यहीं पे रह जाएगा. चलेगा वो यहीं पे ये solution लेके रह गया तो? उसको तो सॉल्यूशन मिल गया था ना, हमें सॉल्यूशन चाहिए था और सॉल्यूशन मिल गया. सो विल दिस पर्सन स्टे हियर विद द सॉल्यूशन हैप्पीली? कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं. नो क्यों भाई? मिल गया ना सॉल्यूशन, क्या इशू है? इस सॉल्यूशन के साथ क्या प्रॉब्लम है? ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ पर है? टाइम डोमेन में. सॉल्यूशन कहाँ पर है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में. यस अमित, सॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में है. तो ये सॉल्यूशन का क्या फायदा, जब इसका क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन टाइम डोमेन में है, सॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके क्या फायदा? ओके, सो सॉल्यूशन तो मिल गया, बट अब हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन से कहाँ जाना है? टाइम डोमेन में. सो ये बंदे को समझ में आ गया कि ये सॉल्यूशन यहाँ रख के फायदा नहीं है, तो इमीडिएटली ही विल स्टार्ट रशिंग टुवर्ड्स द टाइम डोमेन. ओके, अब उसको ये सेम ब्रिज क्रॉस करना है to go from frequency domain to time domain. Okay, पहले वो time domain से frequency domain में गया था using Laplace transform. अभी वो same चीज the other way करने वाला है. He is going to move from frequency domain to time domain. Okay, so he is going to use a tool which is the inverse of this particular tool. तो ये जो टूल यूज करेगा टू कम बैक फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डोमेन टू टाइम डोमेन, वो टूल कौन सा रहेगा? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज समथिंग विच इज सिमिलर टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बट वो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में इनवर्स इफेक्ट दिखाता है वो. ओके, so this person he uses inverse Laplace transform, he comes back to time domain with the solution. So now he has got the solution in the time domain, जिसका question भी time domain में है. He is very happy, अपना problem solve हो गया. Okay, now this is the entire procedure of the entire topic on Laplace transform. Okay, ये आपका main application of Laplace transform हो गया है. मैं इसको क्विकली एक बार रिवाइज करती हूँ. ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है? whenever there is a differential equation in the time domain which is difficult to solve, what we do is we use Laplace transform, take the question to the frequency domain,
In the frequency domain, it becomes an algebraic equation. So then it becomes very easy to find the solution in the frequency domain. Once you get the solution in the frequency domain, then you bring that solution back from the frequency domain to the time domain using inverse Laplace transform. So thus you have the solution in a very easy way to the differential equation. Did we understand this? So actually Laplace transform and inverse Laplace transform go together hand in hand. Okay, दोनों इकट्ठा काम करते हैं. Is this clear why we need inverse Laplace transform? Okay. तो अब जब ये समझ में आ गया है कि इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों चाहिए, तो अब देखते हैं कि ये एक्चुअली ये इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है. ओके, नाउ लप्लास ट्रांसफॉर्म ने का हमने एक बकायदा डेफिनेशन देखा था. इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म का भी theoretically there is an official definition, but we are not going to get introduced to this using the definition. हम लोग इसको ऑपरेशंस के तरीके से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं. ओके, एंड व्हाट इज दैट? हियर the how we are going to get introduced to inverse Laplace transform is, if Laplace transform of f of t of a function f of t is equal to phi of s, then Laplace inverse of phi of s equal to f of t. This is the definition of Laplace transform, inverse Laplace transform we are going to take. Okay, the definition that we are going to take is, if Laplace transform of f of t is equal to phi of s, then Laplace inverse of phi of s equal to f of t. Okay, why we are going to take this definition? Because we are getting introduced to inverse Laplace transform after सीइंग लप्लास ट्रांसफॉर्म. लप्लास ट्रांसफॉर्म के सारे टेक्निक स्ट्रेटजीज हमने देख लिए हैं. उसके बाद हम इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक देख रहे हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज वी व्हाट आर गोल हियर इज टू फाइंड इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन. फंक्शन दिया होगा, उसका इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करना है. तो आर गोल हियर इज कंप्लीटली कैलकुलेटिव. तो उस कैलकुलेशंस के लिए ये वाला डेफिनेशन काम आता है. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन विच इज देयर इन अ सिलेबस. तो अपने सिलेबस में अगर आपको किसी ने डिफाइन करने बोला इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म, यू हैव टू डिफाइन इट एज, if Laplace transform of f of t equal to phi of s, then Laplace inverse of phi of s equal to f of t. Okay, there is another definition which is again in the form of integral, but वो हम अपने सिलेबस में इस बार यूज नहीं करेंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव. तो ये एक बार डेफिनेशन हो गया. द नेक्स्ट थिंग, एज अपना गोल तो यहाँ पर क्लियर है, हमको इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शंस का फाइंड आउट करना है. ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला का लिस्ट होना चाहिए. तो अब यहाँ पर इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे बाय रेफरिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिस्ट ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म. लप्लास ट्रांसफॉर्म का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिस्ट था ना. चलो फटाफट देखते हैं कि वो क्या था. We had this, Laplace transform of 1 is 1 by s, Laplace transform of e raised to at is 1 upon s minus a, Laplace transform of e raised to minus at is 1 upon s plus a, Laplace transform of sin at is a upon s square plus a square, Laplace transform of cos at is s upon s square plus a square, Laplace transform of sin hyperbolic at is a upon s square minus a square. Laplace transform of cos hyperbolic at is s upon s square minus a square. And finally, we had seen Laplace transform of t raised to n is gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1. ओके, तो ये फॉर्मूला लिस्ट देखा है हमने. दिस फॉर्मूला लिस्ट वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद. अब इसको यूज करके हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे फॉर इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म वन बाय वन. ओके, और इसको ध्यान में रख के इसको याद रखेंगे. ओके, तो इट विल बिकम इजी टू रिमेंबर. तो फर्स्ट फॉर्मूला था अपना लप्लास ऑफ 1 इज 1 बाय एस.
अब ये लप्लास को आप राइट हैंड साइड में लोगे तो इट बिकम्स लप्लास इनवर्स ऑफ 1 by s. So Laplace inverse of 1 by s equal to 1. That is the first standard formula in inverse Laplace transform. Okay, Laplace inverse of 1 by s equal to 1. अभी आप सेकेंड फॉर्मूला भी अभी आप गेस कर सकते हो. द सेकेंड फॉर्मूला वुड बी, यू हैव टू टेक दिस हियर. So you get Laplace inverse of 1 upon s minus a will be e raised to at. Laplace inverse of 1 upon s minus a equal to e raised to at. Let's look at the third formula. ये लप्लास को आप राइट हैंड साइड में लेकर गए, ये बन गया लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस ए इक्वल टू, यहाँ बचा e रेज टू माइनस एटी. सो दिस गिव्स यू द फॉर्मूला लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस ए equal to e raised to minus at. Let's look at the next one. From this we get the formula Laplace inverse of, इसको यहाँ लेकर गए, Laplace inverse of a upon s square plus a square equal to sin at. We will remember this formula as it is. वो easy रहता है याद रखने के लिए, because sin at का Laplace is a upon s square plus a square. तो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लप्लास इनवर्स साइन 80, ये याद रखने में इजी होता है. इन मेनी प्लेसेस इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन देते हैं जहाँ पे ये a को बाहर निकाला एंड उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया. सो दे गिव यू द फॉर्मूला एज लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज साइन 80 अपॉन a. Okay, but we will be using it in this form only. It will be much more easier to remember. Okay, let's look at the next one. इसमें से क्या फॉर्मूला मिलेगा? लप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू cos 80. ओके, सो नेक्स्ट इसमें से क्या फॉर्मूला मिलेगा? लप्लास इनवर्स ऑफ a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 80. नेक्स्ट इसमें से क्या फॉर्मूला मिलेगा? लप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 80. एंड फाइनली इसमें से क्या मिलेगा? लप्लास इनवर्स ऑफ गामा ऑफ n प्लस वन अपॉन s रेज टू n प्लस वन इज इक्वल टू t रेज टू n. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिस्ट को ऐसे ध्यान में रखेंगे तो हमें इजी हो जाएगा. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी प्रॉब्लम्स where we are going to use the standard formulas of inverse Laplace transform. ओके, इसके अलावा एक और छोटी सी चीज लगेगी विच इज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी. हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म में भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखा था जो बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजों पे यूज होती है. लीनियरिटी प्रॉपर्टी कब यूज होती है? व्हेन यू हैव एडिशन ऑफ टू फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. मतलब एक फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया गया है. इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म में भी we use the linearity property for the same purpose. Whenever you have addition of two functions, whenever you have subtraction of two functions, or a function multiplied with some constant. Okay, I am quoting the general property here. ये आपको तो समझ में आ ही जाएगा. Laplace inverse of some constant m into alpha of s. एक चीज आपने नोट की होगी, Laplace inverse जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो अपना इनपुट फंक्शन इज इन द s डोमेन. ओके, सो Laplace इनवर्स ऑफ m इंटू अल्फा एस प्लस n इंटू बीटा एस. अगर ऐसा है तो ये m बाहर आ जाएगा इंटू Laplace इनवर्स ऑफ अल्फा एस. यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आता. n बाहर आ जाएगा इंटू Laplace इनवर्स ऑफ बीटा ऑफ एस. सो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेम उसी तरह से यूज करना है जैसे हमने Laplace ट्रांसफॉर्म में यूज किया. ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का लिस्ट कैसे आया, ये समझ में आया? ओके, लीनियरिटी प्रॉपर्टी समझ में आया? ओके, अगर आपने देखा द प्रोसीजर विच वी हैव यूज्ड टू फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का लिस्ट, इट इज सेम लाइक हमने जब 12th में डेरिवेटिव वाला चैप्टर कंप्लीट किया, हमारे पास डेरिवेटिव्स के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे तो उसमें से हमने इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिस्ट बनाया. करेक्ट नो? लाइक डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ cos x is sin x. ओके, सो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल आर इनवर्स ऑपरेशंस. इसके लिए हमने एक का फॉर्मूला सेट दूसरे में से बनाया. सिमिलरली हियर Laplace ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म आर
इनवर्स ऑपरेशंस, तो एक का फॉर्मूला सेट हमने दूसरे में से बनाया। ओके, ऑल राइट। अभी ये जो फॉर्मूला लिस्ट है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, थोड़े दिमाग में बैठने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। सो आज जो भी प्रॉब्लम्स हम करेंगे, आई विल कीप दैट फॉर्मूला लिस्ट इन फ्रंट ऑफ अस सो दैट वी कैन रेफर। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला लिस्ट आप कहीं पर नोट डाउन करके आपके सामने रख सकते हो, तो उसमें से आप रेफर कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, आज मैंने ये सामने रखा है। Okay, so now let us start solving the first type of problem where we find the inverse Laplace transform using the standard formulas, and of course linearity property by default आएगा ही। Okay, तो यहाँ पर ये problem है। Now सबसे पहले problem को start करने से पहले let me tell you कि हाँ, अनुपम is right, anti derivative। Okay, sorry अनुपम, I didn't see your message। ओके, यहाँ पर लप्लास इनवर्स के टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले लेट अस सी कि यहाँ पर हमको अप्रोच क्या लेना है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, हमारा स्टेप 1 कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ना है सॉल्यूशन में, वो क्लियर होता है। ओके, अब लप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने स्टेप कैसे हमने ये किया था, अप्रोच किया था, वी यूज्ड ऑपरेशंस। ओके, कौन सा फंक्शन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज की थी। अगर मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, लाइक मल्टीप्लिकेशन है तो कौन से फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो वो वाला प्रॉपर्टी यूज किया था। लाइक मल्टीप्लिकेशन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ है तो पता है कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन अगर टी के साथ है तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय टी है तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। अगर द ऑपरेशन इज डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव लिया है तो उसका प्रॉपर्टी, इंटीग्रल लिया है तो उसका प्रॉपर्टी। तो वी लुक्ड एट द ऑपरेशन कि क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है। लप्लास ट्रांसफॉर्म में ये अप्रोच था। बेस्ड ऑन द ऑपरेशन हमने डिसाइड किया कि कौन सा फंक्शन कैन बी टेकन केयर बाय द प्रॉपर्टी, तो उसको हमने गायब कर दिया था। फिर जो बचता है उसके लप्लास ट्रांसफॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं, एंड वन बाय वन वी कीप ऑन अप्लाइंग द ऑपरेशंस यूजिंग द प्रॉपर्टी, और हमको आंसर मिलता है। तो हमारा लप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का तरीका था यूजिंग ऑपरेशंस। ओके, लप्लास इनवर्स में तरीका डिफरेंट रहेगा। ओके, तो ये क्या तरीका है, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हियर विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिस्ट। इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म आप जिस किसी फंक्शन का फाइंड आउट करोगे, एक चीज आप नोट करोगे कि लप्लास इनवर्स आपको जिस फंक्शन का फाइंड आउट करना है, इट विल ऑलवेज बी अ रेशियो, मतलब एक न्यूमरेटर रहेगा और एक डिनोमिनेटर रहेगा। ओके, तो जब आप हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के डिसाइड करना है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये डिसाइड करने के लिए इन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यू हैव टू लुक एट द डिनोमिनेटर। सिर्फ डोंट लुक एट द न्यूमरेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो। डिनोमिनेटर को देख के हम डिसाइड करेंगे कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होगा। ओके, सो हियर इन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म the key thing to observe is the denominator। ओके, आज हम प्रॉब्लम टाइप 1 कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम टाइप 1 दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसमें कौन से टाइप्स ऑफ डिनोमिनेटर्स है, लेट अस सी। ये फॉर्मूला में हम सब डिनोमिनेटर्स देखेंगे। ये जो s है, वेल दिस s यू कैन टेक इट एज s रेस टू n, या फिर इसको s प्लस 0, s माइनस 0, ये डिफॉल्ट फंक्शन ले सकते हैं। सी द डिनोमिनेटर, अदर डिनोमिनेटर्स हियर आर s माइनस ए, s प्लस ए। तो ये एक टाइप ऑफ हमारा डिनोमिनेटर रहेगा, या तो हमारे पास डिनोमिनेटर में s प्लस ए रहेगा या फिर s माइनस ए रहेगा। दूसरा डिनोमिनेटर क्या रहेगा, लुक एट द नेक्स्ट फॉर्मूलाज। वी आर नॉट लुकिंग एट द न्यूमरेटर हियर, ओके, वी आर जस्ट लुकिंग एट द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के बारे में टेंशन नहीं लेना अभी। The next denominator we can come across is s square plus a square। See यहाँ पर भी s square plus a square, यहाँ पर s square minus a square, यहाँ पर s square minus a square। So the next type of denominator we can come across is s square plus or minus a square। Okay, ये second type of denominator है।
and then the last type of denominator is s raised to some power. यहाँ पर n plus 1 है तो मैंने जनरलाइज करके s raised to some power that is n लिखा है. तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है तो ये 3 टाइप ऑफ डिनोमिनेटर हमें आ सकते हैं. एक है s प्लस और माइनस a, s स्क्वायर प्लस और माइनस a स्क्वायर एंड s रेज टू n. ये 3 टाइप ऑफ डिनोमिनेटर है. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आइडेंटिफाई करना है. ओके ओके, एक बार डिनोमिनेटर आइडेंटिफाई कर दिया उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो रूटीन है. वो हम जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे देखेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम आई विल समराइज दैट. ओके, so let us look at this question. We have to find Laplace inverse of 2s minus 3 upon s square plus 9. क्योंकि ये Laplace inverse का प्रॉब्लम है, फर्स्ट हमारा ध्यान जाएगा डिनोमिनेटर पर. वी चेक ये स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है क्या. क्या है ये s square plus 9. Well, this 9 can be seen as 3 square. So this is Laplace inverse of 2s minus 3 upon s square plus 3 square. तो ये जो डिनोमिनेटर है, people have already solved it, great. Anyway, I will go ahead with my explanation because here understand the technique which is involved over here जो हमको पूरे टॉपिक के लिए काम आएगा. ओके, तो s square plus 3 square ये अपना स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी ऑब्जर्व. अगर स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है तो नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, डिवाइड सेपरेटली. अब हम इसको डिवाइड सेपरेटली करेंगे यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी. ओके, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये पहले जो 2 है ये लप्लास इनवर्स के बाहर आएगा और हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा लप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ओके, सी दैट इज व्हाट वी हैव गॉट हियर, 2 into लप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. फिर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा और लप्लास इनवर्स ऑफ 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. Now we could have taken this 3 outside but I have kept it inside for a reason. Okay, यहाँ पर हमने इसको सेपरेट किया है using linearity property. अभी आप ये पहला वाला लप्लास इनवर्स देखो, ये इसमें ये जो स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है s स्क्वायर वाला डिनोमिनेटर मैंने पहले कंसिडर किया है. एस स्क्वायर वाले डिनोमिनेटर में आपको न्यूमरेटर में या तो s रहेगा तो ये फॉर्मूला काम आएगा या फिर कांस्टेंट रहेगा एंड इफ इट हैज टू बी अ कांस्टेंट देन इट हैज टू बी दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट a. दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट दिस 3 हियर. तो फिर ये वाला फॉर्मूला. ओके, सो हियर दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला. स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो लेट अस डू दिस. 2 into now Laplace inverse of s upon s square plus 3 square is cos 3t. तो यहाँ हमें मिलेगा 2 cos 3t. ये माइनस आएगा एंड दिस इज लप्लास इनवर्स ऑफ 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज sin 3t. So we get the answer as 2 cos 3t minus sin 3t. Lalit has already given the answer even before I started solving. Very good, Lalit. Okay, have you understood the procedure? प्रोसीजर समझ में आया इसमें? ओके, तो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला लिस्ट याद रखना है. ये जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे वैसे वैसे ये याद हो जाएगा. ओके, फॉर्मूला लिस्ट. सेकेंड चीज है यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है. यहाँ पर हमने क्या देखा, स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है तो डिवाइड सेपरेटली करो और डिवाइड सेपरेटली करने के बाद या तो न्यूमरेटर में s आता है. अगर न्यूमरेटर में s आया तो उसका लप्लास इनवर्स कॉस फंक्शन है. न्यूमरेटर में कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे तो उसका लप्लास इनवर्स साइन फंक्शन है. ओके, ये s स्क्वायर वाले डिनोमिनेटर की बात चल रही है अभी. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी हैव टू फाइंड लप्लास इनवर्स ऑफ 8 minus 6s upon 16s square minus 9. क्योंकि ये लप्लास इनवर्स है हम न्यूमरेटर की तरफ ध्यान देंगे भी नहीं. क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर को. Now this denominator 16s square minus 9, is it in the standard form? Here if you look at all the standard forms, ये पहले वाला standard form देखो, s के साथ कुछ भी multiplied नहीं है. It is just s plus a और s minus a. ये दूसरी वाली s स्क्वायर है, s स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है. इट हैज टू बी s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तीसरी वाली s रेस टू n के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है. तो हमारे जो स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर्स है
तो s या s स्क्वायर या s रेज टू n वाले टर्म्स है उनके साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर s स्क्वायर है उसके साथ 16 मल्टीप्लाइड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 16 को कॉमन निकाल देते हैं। देन वी विल, राइट नाउ इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वी विल गेट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये 16 को बाहर निकालेंगे तो दिस विल कम आउट एज 1/16। अभी कॉमन निकालने का रूल क्या है, जहां है वहां से निकालो, जहां नहीं है वहां डिवाइड करो। तो ये 16 यहाँ है, इसको कॉमन निकाल दिया तो यहाँ s स्क्वायर बचा माइनस, ये यहाँ पर 16 नहीं है तो वहां पर डिवाइड कर दिया, सो वी गेट s स्क्वायर माइनस 9/16। Now let us see, is this our standard denominator? Yes, ये अपना second type of denominator है, right? Which form it is? S square minus a square का form है। So this, ये हर बार इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, s square minus a square। I am writing it for the initial problems। आगे हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि this is 3/4 का स्क्वायर है, ओके। तो दिस इज 1/16 Laplace inverse of 8 minus 6s upon s square minus 3/4 the whole square। तो अब हमें देखना है कि डिनोमिनेटर जो है स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है। जैसे ही स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर मिलता है, सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, डिवाइड सेपरेटली और लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करो। तो यहाँ अगर हम डिवाइड सेपरेटली करते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, ये 1/16 वैसा का वैसा रहेगा, ये फर्स्ट इसमें से 8 बाहर आ जाएगा एंड वी गेट 8 इंटू, ये 8 बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा, तो लप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर माइनस 3/4 द होल स्क्वायर, ओके। माइनस ये सेकेंड, इसमें से 6 कॉमन बाहर आ सकता है, तो ये 6 बाहर निकलेगा तो वी गेट -6 इंटू लप्लास इनवर्स ऑफ s/s स्क्वायर माइनस 3/4 द होल स्क्वायर, ओके। तो ये हमें सेपरेट डिवीजन करके लिनियरिटी प्रॉपर्टी भी साथ में हमने एक ही स्टेप में यूज किया है, ये मिला, ओके। यहां तक समझ में आया? ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा स्टेप हमें मिला है। तो सेपरेट डिवीजन करने के बाद हमने क्या देखा था, न्यूमरेटर में या तो कांस्टेंट चाहिए या तो s चाहिए। तो जहां s चाहिए वहां पर कुछ नहीं करना है, ये वाला जो न्यूमरेटर 1 है, ये 1 इज अ कांस्टेंट, इजंट इट? तो ये 1 वाला कांस्टेंट नहीं चलेगा। कौन सा कांस्टेंट चाहिए, 3/4 चाहिए, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, ओके। सो वी हैव दिस 1/16, ये 8 रहा। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में हमने 3/4 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 4/3 से भी मल्टीप्लाई किया है, that 4/3 is outside the Laplace inverse। So we get 8 into 4/3 into Laplace inverse of 3/4 upon s square minus 3/4 the whole square. This will remain as it is. So this gives us -6 Laplace inverse of s upon s square minus 3/4 the whole square. Okay. अब ये जो Laplace inverse है ये हमें पता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 3/4, तो ये साइन का हो गया और ये कॉस का हो गया। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट। सो दिस विल बिकम 1/16। Here when you multiply this, 8 fours are 32/3, Laplace inverse of a upon s square minus a square, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पर। तो दिस विल बी साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3/4t। यहाँ पर क्या आएगा, -6 लप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। सो दिस वुड बी -6 cos हाइपरबोलिक ऑफ 3/4t। ये अपना आंसर मिल गया। बस इसको एक छोटा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, यू कैन ईदर टेक वॉट एवर यू कैन टेक कॉमन एंड उसको बाहर लिख सकते हैं, ईदर वे इज फाइन, ओके। यहाँ पर अगर हमने ब्रैकेट ओपन किया, 1/16 इंटू 32/3 गिव्स अस 16 1 जा 16 2 जा, सो ये 2/3 साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3t/4, और यहाँ पर 6/16, तो -6/16 विल बी 3/8 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 3t/4, और ये अपना फाइनल आंसर है। डिड वी अंडरस्टैंड दिस? ओके, तो यहाँ पर आई एम रिपीटिंग अगेन, मेन चीज क्या है, अपना 3 टाइप ऑफ स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है। जैसे ही हमारा स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर मिल गया,
हमें क्या करना है, डिवाइड सेपरेटली, linearity property, standard formula. Okay, ये यूज करना है. Let's move on to the next problem. Okay, find Laplace inverse of 6 upon 3 minus 2s minus 3 plus 4s upon 9s square plus 16. Okay, ये अपना क्वेश्चन है. तो यहाँ पर ये माइनस देखेंगे तो सबसे पहले तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके इसको सेपरेट किया. तो दिस बिकम्स लप्लास इनवर्स ऑफ 6 अपॉन 3 माइनस 2s माइनस लप्लास इनवर्स ऑफ 3 प्लस 4s अपॉन 9s स्क्वायर प्लस 16. ओके, लप्लास इनवर्स है तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे. ये जो डिनोमिनेटर है ये s वाला डिनोमिनेटर है. ओके, s रेज टू 1, s रेज टू 1 वाला जो स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर इट हैज टू बी s प्लस a और s माइनस a. मतलब s के साथ क्या मल्टीप्लाइड रहना चाहिए, 1 मल्टीप्लाइड रहना चाहिए. बाकी टर्म्स को तो हम रीअरेंज कर सकते हैं, नॉट एन इशू, बट s के साथ 1 मल्टीप्लाइड रहना चाहिए. यहाँ पर s के साथ कौन मल्टीप्लाइड है, -2. तो इसको स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर में लाने के लिए ये -2 को हमें कॉमन निकालना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर -2 को कॉमन निकालते. ये न्यूमरेटर में कांस्टेंट 6 है, इसको भी बाहर निकाल दिया. सो वी गेट 6, ये -2 बाहर आया. 6 को कॉमन निकाला तो लप्लास इनवर्स के अंदर 1 बचा. डिनोमिनेटर में हम -2 को कॉमन निकाल रहे. कॉमन निकालने का रूल क्या है, जहां है वहां से निकालो, जहां नहीं है वहां डिवाइड करो. तो ये 3 में -2 नहीं है तो वी डिवाइड 3 अपॉन -2. ये -2 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर प्लस बचा s. ओके, सो हियर वी हैव टेकन दिस कॉमन. लेट अस लुक एट दिस टर्म. ये s स्क्वेयर है, मतलब ये इसके साथ ये स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में बैठता है. बट s स्क्वेयर के साथ हमें कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर इस 9 को कॉमन निकालना है. तो व्हेन वी टेक दिस 9 कॉमन इट कम्स आउट एज 1/9. वी गेट लप्लास इनवर्स ऑफ दिस 3 प्लस 4s रिमेन्स एज इट इज अपॉन, कॉमन निकालने का रूल है, जहां है वहां से निकालो, जहां नहीं है वहां डिवाइड करो. तो ये 9 कॉमन निकाला तो यहाँ s स्क्वेयर प्लस यहाँ पर 9 नहीं है तो 16 अपॉन 9, 9 से डिवाइड कर लिया. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखते हैं. ऑलराइट, तो हियर दिस 6 अपॉन -2 इज -3. लप्लास इनवर्स ऑफ, इसको पहले लिखा, सो वी गेट 1 अपॉन s and this is 3 upon -2 is -3/2. Okay, so now this has become the standard denominator s minus a. Now here this is -1/9. यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है, दिस इज ऑफ द फॉर्म s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ये a को भी आप पहचान सकते हो, इट इज 4/3 द होल स्क्वायर. आई टोल्ड यू आई विल नॉट बी राइटिंग इट अगेन. तो अभी हम देखते हैं ऐसे डायरेक्ट हमको समझ में आता है क्या. नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर से आई विल राइट इट एज 4/3 स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में ये स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है, तो डिवाइड सेपरेटली. तो डिवाइड सेपरेटली किया तो ये 3 कॉमन निकाला, यहाँ 1 बचा, प्लस सेकेंड टर्म में से ये 4 कॉमन निकाला इनटू लप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16/9. ओके, तो नाउ इफ यू लुक एट दिस 3 टर्म्स, ये वाला तो परफेक्ट है, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द लप्लास इनवर्स. ये वाला ठीक है, सिर्फ ये इसके साथ बैठता है, बट हमें न्यूमरेटर में a चाहिए, तो विल हैव टू फिक्स दिस a. ये जो थर्ड वाला है ये परफेक्ट है, डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला. अब सिर्फ इसको फिक्स करने की जरूरत है. सो फर्स्ट लेट अस फिक्स दिस एंड देन वी विल सॉल्व इट. यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या चाहिए, सी लुक एट दिस टर्म, 16/9 किसका स्क्वायर है, 4/3 का. तो यहाँ पर हमें 4/3 चाहिए. सो लेट्स गेट दैट 4/3 इन द पिक्चर. ये -3 लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 3/2 को फिलहाल ऐसे ही लिखा, -1/9 दिस 3. सी यहाँ पर हमने 4/3 लाया, मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ बाहर 3/4 के साथ मल्टीप्लाई किया है. सो वी गेट 3 इंटू 3/4 इंटू लप्लास इनवर्स ऑफ 4/3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16/9. इसको वैसे के वैसे लिख दिया. ओके, सो नाउ दिस स्टेप इज रेडी फॉर यूजिंग द फॉर्मूला. तो चलो फॉर्मूला यूज करते हैं. पहला वाला, हियर Laplace inverse of 1 upon s minus 3/2. This will be this -3 e raised to 3/2 t, which I have written is as 3t/2. Okay, so this is e raised to 3
t by 2. We have used this particular formula here. Here we get minus 1 by 9, और ये 3 into 3 by 4 is 9 by 4. Laplace inverse of 4 by 3 upon s square plus this is 4 by 3 the whole square. So this will be sine of 4 by 3t, that is 4t upon 3. Okay, plus here this is 4 Laplace inverse of s upon s square plus this is again 4 by 3 the whole square. So this will be cos of 4 by 3t. तो ये हमने फॉर्मूला यूज कर दिया. अब हमें जस्ट ये माइनर सिंप्लीफिकेशंस करना है. लेट अस डू दैट. दिस विल बी minus 3 into e raised to 3t by 2. When you open the bracket, minus 1 by 1 into 9 by 4. This will become minus 1 by 4 sine 4t by 3. And here when you open this bracket, minus 1 by 9 into plus 4. This becomes minus 4 by 9 into cos of 4t by 3. And that is the final answer. Did we understand this? Are we finding it easy? आसान लग रहा है? ओके. यहाँ पर मैं कुछ चीजें मे बी थोड़ा बार बार रिपीट करूंगी. इट कुड बी अ लिटिल बिट इरिटेटिंग, बट वो जो चीज है दैट इज द की कॉन्सेप्ट, उसको नेक्स्ट टाइप प्रॉब्लम टाइप्स में हम बिल्ड करेंगे. तो दिस आई वांट टू ग्रिल इन वेरी नाइसली. इसके लिए मैं थोड़ा रिपीट करूंगी. ओके, सो थोड़ा इरिटेटिंग रहेगा तो प्लीज बेयर विथ मी. Okay, let's just see one more problem now. Okay, one more problem, okay, of this type. So the question is find Laplace inverse of 2 by s plus 1 upon s cube plus 1 upon s plus 4. ये अपना क्वेश्चन है. Laplace inverse है. सबसे पहले ये प्लस देखा तो इसको सेपरेट करते हैं यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी. तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज किया तो पहले वाले में ये 2 बाहर आ जाएगा इनटू लप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s बचेगा प्लस लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s क्यूब प्लस लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 4. ओके, तो ये हमारे पास 3 लप्लास इनवर्स है. लेट अस सी. ये जो फर्स्ट वन है ये फर्स्ट टाइप का है. इसका तो डायरेक्ट आंसर हमें पता है, इट इज 1. ओके, ये जो सेकेंड वाला है ये यहाँ पर डिनोमिनेटर लप्लास इनवर्स में हमें सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है. एस क्यूब मतलब ये इस टाइप का है. एस रेज टू एन प्लस 1 जब है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए? गैमा ऑफ एन प्लस 1. करेक्ट. मतलब यहाँ पर एस क्यूब है तो न्यूमरेटर में चाहिए गैमा ऑफ 3, तभी हम इसको फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर पता चल गया यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या एडजस्ट करना है? गैमा ऑफ 3. ये चीज हम नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट करेंगे. इसको देखते हैं लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 4. s प्लस 4 ये वाला प्रॉब्लम है. ओके, ये वाला सॉरी ये वाला फॉर्मूला है. डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं. तो लेट्स डू दिस इन द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में आई एम जस्ट एडजस्टिंग दिस गैमा ऑफ 3. बाकी दोनों लप्लास इनवर्स सही है तो इसको एडजस्ट करके एक साथ इनके फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करते. सो दिस इज 2 इंटू लप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s एज इट इज प्लस यहाँ गैमा ऑफ 3 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिनोमिनेटर में यहाँ पर डिवाइड भी किया. सो वी गेट 1 अपॉन गैमा ऑफ 3 इंटू लप्लास इनवर्स ऑफ गैमा ऑफ 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 4. तो यहाँ पर जो टर्म चाहिए वो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. मल्टीप्लाई यहाँ पर किया लप्लास इनवर्स के अंदर, डिवाइड बाहर किया. ओके, नाउ वी आर रेडी टू सब्सटीट्यूट द फॉर्मूलाज. तो 2 इंटू लप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s इज 1. ओके, प्लस ये 1 अपॉन गैमा ऑफ 3 विल रिमेन एज इट इज. अब ये फॉर्मूला देखो, लप्लास इनवर्स ऑफ गैमा ऑफ n प्लस 1 अपॉन s रेज टू n प्लस 1 जब रहता है तो t रेज टू n मिलता है. ओके, s का जो भी पावर था उससे एक पावर कम t का होता है. तो यहाँ पर लप्लास इनवर्स ऑफ गैमा ऑफ 3 अपॉन s क्यूब है तो इसका आंसर रहेगा t स्क्वायर. ओके, प्लस लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 4 है तो इसका आंसर है e रेज टू माइनस 4t. सो लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस a इज e रेज टू माइनस 80. तो ये अब हमने फॉर्मूलाज डाल दिए.
अब इसमें सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन रह गया है, दैट इज gamma of 3. gamma का वैल्यू तो कैसे फाइंड आउट करना है वो हमने देखा है. ओके, सो हियर दिस इज gamma of 3. दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर. तो इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 into 1 is 2 plus gamma of 3 will be 2 factorial. So we get 1 upon 2 factorial into t square plus e raised to minus 4t. Okay. नेक्स्ट ये 2 फैक्टोरियल का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. 2 फैक्टोरियल इज 1 into 2 which is 2. So let's substitute that. We get 2 plus 1 upon 2 into t square. This can also be written as t square upon 2 plus e raised to minus 4t. Okay, so this is the final answer. So here we have seen हाउ टू यूज ऑल द फॉर्मूलाज. अब तक हमने प्रॉब्लम्स देखे हैं जिसमें हमने सारे फॉर्मूलाज यूज कर लिए हैं लैप्लास इनवर्स के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जहां पे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज यूज करके सॉल्व कर रहे हैं. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, यहाँ पर अगर किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं कि ये हमारा बेस है. ये बात बहुत, ये अपना लाइक स्टेप 1 है, देन वी गो टू स्टेप 2, स्टेप 3. ओके, राइट. तो ये अपना बेसिक फाउंडेशन है. ये जो हम आज के प्रॉब्लम्स में जो हमने किया है, अभी नेक्स्ट हम जब प्रॉब्लम टाइप 2 करेंगे, प्रॉब्लम टाइप 3 करेंगे, ये वाला पार्ट आपको हर प्रॉब्लम में करना पड़ेगा. तो ये वाले जो स्टेप्स है ये बहुत अच्छे से समझ में आए रहने चाहिए. ओके, ऑल राइट. तो आज के लिए अपना इतना ही है. प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिया है मैंने. ओके, आज मैं क्विकली थोड़ा समराइज कर रही हूँ. आई हैव नॉट टेकन प्रॉब्लम टाइप 2 क्योंकि आज आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट अप. सिर्फ प्रॉब्लम टाइप 1 ही आज किया है. इसको क्विकली समराइज करते हैं. प्रॉब्लम टाइप 1 में हमने क्या देखा है? फाइंडिंग लैप्लास इनवर्स यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज. ये है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज. स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में 3 टाइप ऑफ स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है. कौन से? एस प्लस और माइनस ए, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड एस रेज टू सम पावर. ओके, जैसे ही स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर दिखता है लैप्लास इनवर्स में, हमें उसको सेपरेट डिवीजन करना है और लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करना है और फिर फॉर्मूलाज यूज करने हैं. ये इंडिविजुअल फॉर्मूलाज भी कैसे यूज करने हैं उसको हमने देखा है. विल सी मोर ऑफ दिस इन more of the problems that we will be doing. Okay, so this is the first type of problem. So you can practice the problems and next lecture में what we will see is when we have to find inverse Laplace transform, लेकिन अपना जो denominator है वो standard denominator नहीं है. अगर standard denominator नहीं है तो हम उसको स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर बनाएंगे और फिर हमें पता है कि कैसे सॉल्व करना है. एक बार स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर बन गया तो वो प्रॉब्लम टाइप 1 है. तो अब अगर वो स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर कैसे बनाना है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, नेक्स्ट लेक्चर विल सी प्रॉब्लम टाइप 2. फिर आज आपको क्विज, आफ्टरनून में क्विज एंड डाउट एंड क्वेरीज का फॉर्म भी फिल कर दीजिए. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. जस्ट बिफोर वाइंडिंग अप, ओके, टुडे वी गॉट अर्ली सून. ओके, सबको समझ में आया ना? आज अपना काफी फास्ट हो गया लेक्चर. ओके, just before winding up, just I would like to thank all of y'all for